What activities are involved? Ask. Yeah, youth, I don't expect this kind of activities. तो बच्चों का है लीव प्लास्टिक बैग वाला काम बच्चों को छोड़ दो. I think that the only thing which is sold by force in supermarkets. Whenever I visit a supermarket, all other things I buy as per my choice. But this is the final thing which they say, please buy. I always say no. तो बच्चों का है वो पूरा. When we work at policy level, advocacy level, all these things are very small things. Why a person should see it as the biggest challenge on earth? See, what is the environmental challenge? What are the immediate important challenges? And your way of looking things is you are here and things are there. Say Hussain Sagar, who doesn't like? How many of you like Hussain Sagar? No, I mean going there, having something eatery and something like. How many of you like? Okay. Then tomorrow let us get into Hussain Sagar. How many of you will come with me? Get into Hussain Sagar. Do that. You want to work on trash, but you never want to get into the trash bin. Get into that, stand there and speak about this. See, all other things like Ganesha, everything, then see, even if Ganesha is made of clay, why you are putting in Hussain Sagar when you don't want to get into Hussain Sagar? Then come tomorrow, let us go. If we can go, then God is very much eligible to get into Hussain Sagar as Nimajjan. Others will ban Nimajjan itself. We are not gods. So let us create such events where really we experience certain things. Let us say water, drinking water. You take it as a challenge. You just walk into the city in different colonies, different areas, drink one glass of water. When you can't drink, the others can't drink. It means what they are drinking is not water. Whether it is supplied by government or tankers or purchased, and you analyze it, it's the cheapest thing. And zone it. All volunteers are there. In Hyderabad, you zone it, make a map of Hyderabad. Anybody dying water from this area, he will die. Red, green, yellow, give colors. Open toilets. Why nobody touches, I don't know. Nilofar Hospital, there is a bus stand. Everybody does that thing. All along that road in the Nilofar Hospital, you know how busy it is? Nilofar Hospital, anybody saw? Children's hospital, biggest children's hospital in the state. And many children die and many people make agitation why children are dying. When so many people do toilets openly there on the road itself, so how can you imagine? And reaching the numbers is more important than making an activity or event. And we have media, we have social media, you have cameras. See, within seconds, within a day, every month you can create a biggest impact. It's not a silent revolution, it's a revolution that should happen. If not today, nothing can happen because we are not youth then. Once you lose that boiling blood of youth, over. Every youth requires an agitation or a movement in his lifetime to become what? Leaders. If you have not participated in any of those events, your youth is gone. What else you will do? All old people, what they do? When you will not have even a single moment to celebrate in your youth that you have achieved something for the common cause, because your responsibilities are different. They are not as much as we have. Loyola College thing, it was most successful. He said urban geospirit. Within that we can have thematic, energy, water. You take issue but create an impact. You take monuments.
See, anything can be livelihoods you can take, slum areas you can take, living spaces you can take. That is one of the biggest challenge. How much space a person requires? See, wherever we are not becoming those sadhus. Even Gautam Buddha has to leave his palace to become Buddha. That's the problem. That is the value of space. If he had continued in his own palace, do you think he would have become Buddha? That space makes a person. But how many people get that space? Do you get in your own place? Do you get that space? इधर टीवी चैनल है, उधर और कुछ है, उधर और कुछ है, और अपना दिन चला गया, और we think that is life in a day. Come out of the box. Hyderabad, you have not seen anything. Really, except roads and going to office, coming home into the same, that what is a pigeonhole. You have not seen anything else. Spend a day in a slum area, then you will know who is poor, what is life. Living means not outside. Get into their house. Eat what they are eating. Okay, sit where they are sitting. Never ask for a chair. If they are sitting on the floor, you sit. Then you will get to know the other dimension of Hyderabad. Within same Hyderabad space, how people are living. Everybody has same space on the road. But there is something called another space, that is within the office or within at home, or this, especially home is the best place where we get freedom. However tired you are, however bad our house is, I mean, it's not so clean, nothing. But once you open the door, the freedom that you get, that you will never enjoy. The moment you made your dress like this and with a belt and everything, you are tired. You are trying to create like looking good. At home, do you look good? वो बोलते हैं ना, इवन मैं बोलता हूँ सीएम भी वो क्या बोलते हैं, खाना बनाने वाला टाइप दिखता है, क्योंकि चिट्टी पहन के घूमता है ना घर में. चीफ मिनिस्टर वैसे ही घूमता है, धोती पहन के कुछ टॉवल बांध के घूमता रहता है. बट आउटसाइड, कैन यू इमेजिन काइंड ऑफ दिस थिंग? सो वी ऑलवेज ट्राई टू लुक गुड इन डिफरेंट स्पेसेस. बट वो जो फ्रीडम मिलता है घर का, वी आर नॉट गेटिंग दैट स्पेस. So environment, what is environment? Environment is surroundings. Surroundings means everywhere they are with you. That's why I was telling Shobit also day before yesterday. The moment you are born, why do you cry? You don't like the environment. Why you are not crying now? Although you know that your environment is changing, because you got educated and you have become more insensitive to environment. The child birth itself is a crying, not laughing, because the comfort, the environment in which the child had been in the mother's home, that environment is gone. Now the child is outside environment, exposed to. So that's crying. Then why you are not crying? Why nobody cries if something is happening to environment? So many changes are happening, so much damage is happening, pollution is happening. Why? Because we think that's not my profession, that is not my job, that is not my money. Why I should bother about those things? In spite of that, can we create those living spaces? So that is another biggest challenge. If 10 educated architects are taken, let us say, we give a slum area, 10 houses, let them rearrange the things. This liter of light thing which you had been doing, that's a good thing. Light, giving light is also another empowerment. Enough light. Even at home also, if I don't get enough light, I feel more, वो बोलते हैं ना जेल. जेल में 2-3 कैटेगरीज होता है. पूरा लाइट वाला जेल तो बेस्ट है, सेफ है. जहाँ पूरा खिड़की नहीं, पूरा ऐसे रहता, वाल भी नहीं, इधर तो कम है अपने को. नेक्स्ट जेल ऐसा होगा. और एक जेल होगा पूरा रामदास बांदी का ना बोलते. पता है गोलकोंडा में नहीं है. Only they drop food from top and everything will be dark. So living spaces are like that. We have different categories of spaces. So there are so many challenges that unattended in environment, and never take environment with emotional things, and what media focuses is not environment. A plastic, it is nothing actually. The plastic is like God if you want to see the value of plastic. We are not ऐसी specs बनाते प्लास्टिक से बनाते. Are you not agreeing for that? Belt बनाते प्लास्टिक से बनाते. In every body,
I mean in our own body, button से लेके there are so many parts in our body which are related to plastic. अरे प्लास्टिक को छोड़ो तोड़ो बोले तो निकाल दो पूरा, क्या रहता? नहीं, it has its own value. It is nothing but a form of fossil fuel जो जीव राशि थे दुनिया में उससे निकला है, एक तेल है. Let us keep it, let us preserve it for the future generation. It is not meant for एक दिन में बना क्या पेट्रोल, पूरा निकाल के खत्म कर दो, काम खत्म बोलने के लिए. इतने सालों से बना है. इट हैज सो मच वैल्यू एंड लेट अस कीप इट फॉर गुड वैल्यू. चेयर पे बैठे क्या ये प्लास्टिक छोड़ो बोलते, क्या कितना प्लास्टिक छोड़ो बोलते, छोड़ो बोलते तो पूरा प्लास्टिक छोड़ो बोलो. तो ऐसा इमोशनल चीज मत लो. डोंट अंडरलाइन थिंग्स विथ इमोशंस. क्योंकि पॉलिसी है तो दे विल बैन द कंपनी इटसेल्फ, दे विल इंक्रीज द टैक्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक बैग अगर 10 रुपए बन गए तो कौन भेजेगा? फ्री में भेजेगा क्या कोई दुनिया में? नहीं भेजेगा. बनाओ फिर. अब पेट्रोल का ऊपर तो टैक्स बनाए, हर एक चीज पे टैक्स बना रहे, उस पर भी टैक्स डाल दो. कौन बोलता है ना करने के लिए? अगर करने का इंटेंशन पॉलिसी लेवल पे हो तो. ऑर्डिनरी लोग गली गली प्लास्टिक बैग नहीं करना बोल के बोलना चिल्लाना है, बेकार चीज है, टाइम वेस्ट है कि नहीं? कितना दिन चिल्लाएंगे? तो इट्स नॉट एन इश्यू. डेट इश्यू बच्चों को बोलो ठीक है, कोई समझते हैं उन लोग, उनका दिमाग के लिए ठीक है. ऐसा इश्यू उन लोगों को छोड़ दो, छोटे बच्चों को, ताकि स्कूल लेवल से उन लोग अपने किताबों में पढ़ते रहे और आगे बढ़ते गए. तो अभी पोल्यूशन का है, अभी टेम्परेचर का इश्यू है. हैदराबाद हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं. वाई वी गेट मोर रेडिएशन, वाई आवर बिल्डिंग्स आर लाइक दिस. क्या अपन जी सकते क्या इस रूम में? कैन एन ओल्ड मैन फ्रॉम ए विलेज कैन लिव इन हैदराबाद अपार्टमेंट? कैन यू लिव? 10 साल कट जाएगा. ओल्ड मैन को फिर अपन जंगल लेके जाओ, नहीं तो गांव में छोड़ दो, 10 साल और ज्यादा जिएगा. बिकॉज द एक्सपोजर, यू नो, रेडॉन गैस है इधर इस रूम्स में. सैंड माइनिंग ये पूरा बोलते हैं ना, दैट सैंड हैज ऑलवेज रेडियो एक्टिव मटीरियल, इट्स एसिडिक. So always some radon, not only from that, the base of Hyderabad is granitic, Archean granites. तो रेडन गैस क्रैक्स रहते हैं ना बिल्डिंग्स में, कोई ना कोई छोटा हेयर लाइन क्रैक होता है ना, उसमें से ऊपर आता गैस. इट इज वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस थिंग है. बहुत सारे इश्यूज है बड़े बड़े. वी आर ऑलरेडी इंडोर एयर पोल्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस ऑफ आवर ओन डेथ. नॉट आउटडोर पोल्यूशन. पंजागुट्टा पे भी बैठो आप, कुछ नहीं होगा, हवा खाते थोड़ा उधर का इधर का. लेकिन जो घर में हवा होता है ना अपना ओन का, जितना भी अपना सेल्स भी गिर जाते रहते हैं. अंदर का सेल तो अलग निकलता, लेकिन बाहर का सेल तो बाहर ही निकलता है ना. जो मर गया बाल होते, मोल्ड्स होते और सड़ा हुआ चीज एक ही था, इसमें स्मेल आता है. देखो ये पूरा एवरीथिंग लीड्स टू पोल्यूशन. ये पोल्यूशन इज मोर हजार्डस 20 times to 200 times हजार्डस. कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता. इसके लिए तो सर्टिफिकेट नहीं है ना. गाड़ी बाहर चलाने के लिए सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट. घर में रहने के लिए सर्टिफिकेट कोई नहीं है. अपना टाइल अपना घर में लगाया और कितना पोल्यूशन हो गया? और ज्यादा ही हो गया ना, कम तो नहीं है ना. टॉयलेट जो बाहर रहना चाहिए उसको घर के अंदर लाए, उसको क्लीन करने के लिए और केमिकल डाले. ये केमिकल वो टॉयलेट और ऊपर वाले का भी नीचे स्मेल आता, पता है आपको? अब टॉयलेट यूज भी मत करो, थोड़े दिन घर बंद करके रखो. फिर कभी घर में आए तो ऊपर वाला का टॉयलेट का भी इधर एस्केप रूट मिलता है उसको. तो ग्रेविटी का होता है ना. द सेफेस्ट वाला ऊपर वाला ही आजकल अपार्टमेंट में एयर के लिए. Some things if you can suggest that we'll start working on this. फर्स्ट चीज हुसैन सागर ले लो. अभी कैसे अभी गणेश का आएगा ना. When गणेश कैन गो इन आई विल गो बोलो. गणेश को हाथ में पकड़ो, ठीक है, और पानी में निकलो. निकलते हुए कचरा निकालो, जो कुछ भी उसमें से निकलता है ना. सी गणेशा यू विल हैव एनकाउंटर विद दिस बोलो, ठीक है. नहीं रियली बोल रहा हूँ. एंड टेक ए वीडियो ऑफ दैट. लेट अस सी व्हाट गणेशा विल सी इन हुसैन सागर व्हेन ही गेट्स इनटू इट. गलत बात क्या है उसमें? व्हेन गॉड कैन गेट इनटू हुसैन सागर, यू आर नॉट गॉड्स. ऐसा करो ना प्रैक्टिकल का, बहुत अच्छा रहेगा. ये हुसैन सागर का ले लो, कोई रोकता नहीं. क्यों रोकेगा? अपने को तो फ्रीडम आ गया. अपन 12 दूसरा देश में थोड़ी है क्या? जंगल जाओ, कहीं भी जाओ, रोक नहीं, एक्सेप्ट हो डिफेंस वाले का. ये असेंबली नहीं जाना, थोड़े चीज होते हैं वो छोड़ो, वो चीजों को छोड़ दो. जेल नहीं जाना, ऐसे वॉकिंग टाइप नहीं जा सकते ना.
उनको छोड़ दो, बाकी का पूरा अपना ही है इंडिया। 12 बजे के बाद आदमी लड़की क्या लड़का भी नहीं घूम सकता आजकल। अभी फ्रीडम बोलते, क्या फ्रीडम आ गया। पुलिस वाला पकड़ पकड़ के कितना क्वेश्चन करता पता है ना, 12 बजे के बाद लड़का भी नहीं जा सकता, आज फ्रीडम नहीं है। नहीं, इसी में आप 5 एलिमेंट्स ले लो नेचर का, जो कुछ भी। एयर बोले तो एयर पोल्यूशन का यू कैन क्रिएट ए क्या बोलते हैं, यू गेट इन टू, उसको क्या बोलते हैं अपन, अवेयरनेस इंडिविजुअली लेके जाना अलग है। एक मूवमेंट टाइप लेके आने के लिए मीडिया यूज करो, बहुत फास्ट हो जाता है। क्योंकि मीडिया के लिए घर में बैठे भी आदमी आधा दे कैन गेट इन टू दोज थिंग्स, सो यूज मीडिया। वाटर का एक ले लो, यू सेलिब्रेट क्लीनिंग। एक है फर्स्ट उसका क्या इश्यूज है, सेकंड इश्यू है क्लीनिंग। सी हरदम वी हैव टू मेक सॉल्यूशंस। वन थिंग इज आइडेंटिफाई थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके लिए 2-3 वीक करते रहते ना, यू विल गेट मोर सपोर्ट। जैसे मीडिया में डालते रहो, ऐसा कि लाइव डालो, आजकल नेटवर्क है ना, लेट द पीपुल कम, लेट देम ज्वाइन। आज पूरा दिन का अपन हुसैन सागर का है बोलो, ओनली यू गिव लाइफ जैकेट सो दैट पीपुल डोंट जंप इनटू विदाउट दिस थिंग। तो अपना मिनिमम है लाइफ जैकेट्स का, और रेंट पे लेना हो। बोट क्लब का नहीं ऐसे पड़ा रहता, सुबह सुबह तो कोई टूरिस्ट नहीं रहता ना, उनसे अपन पूरा ले लेना। लेके स्विमिंग आया ठीक है, लेकिन जिसको नहीं है वो भी उतरने के लिए वो लाइफ जैकेट डाल दो, ठीक है। और 1-2 बोट को हायर कर लो, और वो जितना भी है पूरा निकालते रहो। यू जस्ट टेक आउट द थिंग्स, लेट अस सी व्हाट इट इज लाइक, whether it is like heaven for God or hell for God, something like that. तो पूरा करो, करने के बाद सोल्यूशन तो क्या कर सकते हैं, एवरी वीक में टीम्स बना के ग्रुप्स के थोड़ा थोड़ा एरिया में साफ करो। जब हम थोड़ा करते हैं ना, गवर्नमेंट को जान में आएगा, अरे हम तो ये करने का था प्रोजेक्ट, ये ड्रेजिंग का काम था हमारा, तो हम ही करने का है, हम तो टैक्स ले रहे हैं लोगों से, है ना, तो ये हमारा काम है। जब उनको लगेगा तब उन लोग आ जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, तो काम खत्म। उनको एक ही क्वेश्चन पूछा, आप क्यों कर रहे, ठीक है, हम तो पहाड़ तो उठा नहीं सकते, लेकिन छोटा छोटा चीज तो उठा सकते हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। जैसा बच्चे है ना, इससे उठाओ, बताओ। अपन देखने में तो क्लीन दिखते हैं, लेकिन जब उसमें उतर के बाहर निकलते ना, तब फोटो लेके बताना कैसा रहते बोल के, है ना। तो ऐसा एक करो, फिर एयर पोल्यूशन के लिए एक करो, इंडोर स्पेसेस के लिए एक करो, टॉयलेट्स के लिए करो, पुण्य होगा। आई थिंक इट विल बी द इंटरनेशनल मूवमेंट। सुलभ शौचालय अलग बात है, वो आजकल मैं सोचा था एयरपोर्ट इज द ओनली प्लेस वेयर दे डोंट आस्क मनी फॉर टॉयलेट्स। नहीं तो 1 रुपए का किलो चावल खा के 5 रुपए का टॉयलेट को देना, ये है अपना स्कीम्स। जहां भी टॉयलेट गए तो 5 रुपए लगता है ना एक आदमी को, 1 रुपए का चावल तो फ्री में मिलता है ऑलमोस्ट कल। तो अभी उन लोगों का तो एक कमर्शियल एंगल पे ठीक है, उन लोगों ने कुछ फैसिलिटी किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रोड पे है जितने भी टॉयलेट लगे उन्हीं को दिए ज्यादातर, तो नहीं तो जीएचएमसी का टॉयलेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑक्युपाइड द फुटपाथ। सेकंड थिंग है, अंदर जाने से अच्छा वो बाहर जाएगा उसके चारों ओर। पीपुल इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द टॉयलेट दे डू अराउंड द टॉयलेट, ये अप्रूव कर सकते। तो वो टॉयलेट्स का लेना कंपलसरी। बट व्हाट कैन वी डू? इमीडिएट अपन फोटो लेना उनका, हर एक जहां भी टॉयलेट हो रहा है। मैं एक ऑलरेडी नहीं रियली बोलता हूँ, एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट समटाइम्स, knowingly unknowingly or because we have that freedom in India। नहीं वो आर्टिकल भी रख लो, लेकिन मैं बोलता हूँ स्पेशली लेडीज का प्रॉब्लम है, जेंट्स का नहीं है। अपना तो कुछ नहीं जा रहा ना। अरे मैं बोलता हूँ आजकल शेक हैंड देना मुझे डर लगता है, तो वो इट्स ए कॉमन थिंग है, वो अलग बात है। लेकिन एक ही अच्छा इश्यू है, इट इज ए फनी इश्यू, बिकॉज प्रॉब्लम है जहाँ पे दीवार पे लिखा रहता है ना अन्ना को वोट दो बोल के, उसी का ऊपर करते रहे। और पवन कल्याण का गब्बर सिंह क्या किया बेचारा, उसका ऊपर भी वही हो जाता। तो हर एक जगह रेलवे स्टेशन, यू टेक एनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, चार मीनार का ने भी कोई आदमी दिखाई देता थोड़ा अच्छा देखे तो दिस वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू। आई मेड ए मैप, ओपन टॉयलेट हैदराबाद,
वॉलेंटियरली किया था, अभी नहीं 3 साल से पहले कर रहा था। तो यू कैन ऐड टू दैट मैप। गूगल मैप्स में क्या है, आप ये एरिया में जाते हैं ना, एक फोटो ले लो और मेन पॉइंट पे जहाँ कर रहे हो उसका नोट कर लो, उसमें डाल दो, बस अपना मैप बन जाएगा। एटलीस्ट टूरिस्ट लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना कहाँ क्या करना बोल के, वो बोलेगा अथॉरिटी है अभी। हैदराबाद टॉयलेट्स मैप इज वेरी यूजफुल फॉर एनीबडी टू विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग लाइक, है ना। तो ये एक बिगेस्ट मूवमेंट है, क्योंकि पीने का पानी से भी अपना ये जो है ना, बिकॉज इट आप जो बोल रहे हैं इट एड्स टू मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और डिग्निटी ऑफ ए सिटी है, डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग है ना। तो इतने सा नॉट ओनली वुमेन के लिए तो रास्ता छोड़ दे उन लोग, लेडीज से पूछो जहाँ ये कंपलसरी करते ना, वो रास्ते में कभी नहीं जाते, उन लोग तालिबान बन जाते, मतलब ऑन द स्पॉट चुन्नी ऐसा लगा, कुछ ऐसा लगा और उधर से जाते रहते। तो थोड़े रास्ते बंद हो गए। जितना बार बीर हो गए ना अपना हैदराबाद में, हर एक बार बीर का नहीं एक ओपन टॉयलेट स्पेशली बन गया है कि नहीं। तो उसका सोल्यूशन भी है। हम बोलते मेयर से बात की, हम बोले आपको पास दे दो बच्चों को, वो जैसा बस का टिकट देते हैं आप लोग, कंसेशनल पास दो, अंदर जाएगा, कंघी भी करेगा, थोड़ा मुंह हाथ धो लेगा, फ्रेश होगा और थोड़ा पेड़ पौधा लगाओ अंदर, तो बाहर आएंगे, कितना अच्छा रहेगा। हो सकता है ना, फ्रेश होने के लिए भी होना चाहिए। फ्रेशिंग बोलते हैं ग्रीन रूम, मतलब अपन ओनली टॉयलेट के लिए नहीं, आदमी को कभी फ्रेश होने के लिए भी जाना पड़ता है ना। तो वैसा लेट अस क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, व्हाई नॉट। उसमें एडवर्टाइजमेंट लगाओ, फिर फिल्म पोस्टर लगाओ अंदर, फर्क क्या पड़ता है। IMAX में देखो ना, आईने का ऊपर भी ये रहेगा कौन सा एडवर्टाइजमेंट। तो कुछ ना कुछ करो, लेकिन वी कैन ब्रिंग इट एज ए मूवमेंट। दूध का मूवमेंट हो गया, पानी का मूवमेंट हो गया, बोलते हैं ना इसका मूवमेंट हो गया। अरे टॉयलेट का मूवमेंट कहाँ हुआ, अभी हुआ ही नहीं। मुंबई में अभी भी लाखों लोग ओपन डिफिकेशन करते, पता है आपको। दैट इज द बिगेस्ट सिटी एंड नोन ग्लोबली। अरे ये तो छोड़ा, अफ्रीका की बात बोले तो और अपन जी भी नहीं थे, फ्लाइंग टॉयलेट्स बोलते, यू नो दैट टर्म। उनके टॉयलेट नहीं होता, उन लोग प्लास्टिक पेपर में करके उधर कुछ दिखे तो उधर डाल देते, बस जाते जाते। रियली बोल रहा हूँ, वो छोड़ो, एटलीस्ट अपना थोड़ा ठीक है, लेकिन उसको ठीक करेंगे। लेकिन फ्लाइंग टॉयलेट से भी नेगेटिव है ना मुंबई के टॉयलेट। हाईवे को क्यों यूज करते बोले तो थोड़ा अच्छा रहता है हाईवे, बस। तो ये एक इश्यू है, नंबर 1 इश्यू है, या भूलना नहीं, मैं बोला बोल के नहीं, लेकिन आप थोड़ा सोचो समझो, डेफिनेटली यू विल फील दिस इज व्हाट लेफ्ट। अब प्लास्टिक के ऊपर कितना भी बोले, इट इज नॉट लेफ्ट थिंग, इट इज हर कोई चिल्ला रहा है, क्योंकि इट इज वेरी स्मूथ थिंग। स्मूथ बोले तो फैशनेबल थिंग, फैशनेबल थिंग इज नॉट द रियल थिंग। फैशनेबल के लिए कोई भी बोल सकता है, तो पॉलिसी थिंग है एक्चुअली, वो अपन बोलने का चीज ही नहीं है। पॉलिसी में करेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिक चले जाते हो, बड़ी बात नहीं। अभी बोला है, अभी अपने को गार्डन्स, ये अर्बन गार्डन्स एक प्रमोट करो। ईच पर्सन शुड हैव देयर ओन फूड, नॉट ओनली फूड, फ्रेशनर बोलते। रूम फ्रेशनर का मतलब क्या है, जो गंदा है उसमें और थोड़ा गंदा ऐड करो, आई मीन स्मेल्स। नहीं तो आजकल ये एक्स इफेक्ट क्या बोलते हैं, जितना भी सेंट मारे ना लोग, इतना सेंट मारने की क्या जरूरत। बिकॉज योर एनवायरनमेंट इज नॉट, लोग सोचते हैं गंदा स्मेल आग से आ रहा बोल के, आप बोलते नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, देखो मेरा एक्स है बोलने के लिए। तो लोग झूठा क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्मेल्स को लेके घूम रहे। झूठा एनवायरनमेंट है कि नहीं। रियल तो ह्यूमन स्मेल इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्मेल टू बी एज ए सोशल बीइंग। बच्चों को देखो, छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, कभी ऐसा करके देखो ना क्या स्मेल है, भगवान का स्मेल है। बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं ना 1 ईयर 2 ईयर के बच्चों को, एक बार ऐसा करके देखते ना, जो कोई भी बाप माँ बने ना, उनको तो वो स्मेल हाईएस्ट स्मेल है, वो जॉनसन का स्मेल नहीं, ओरिजिनल स्मेल रहता हो दूध पिया बच्चा का। तो दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। लेकिन अपना उल्टा है, आदमी को आदमी अट्रैक्ट करने और कोई स्मेल बीच में आना चाहिए। तो इसके लिए अपन ये फ्रेशनर का मतलब है, एक पेड़ लगाए तो पेड़ का ग्रेटनेस ये है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें लेने की क्षमता है।
अपन 21% ऑक्सीजन लेने के लिए क्षमता अपने में नहीं है। 21% भगवान दिया, फिर भी अपन बोलते हैं नॉट ब्रीथिंग, मुझे अस्थमा आया, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। कोई पेड़ को पूछे क्या, अरे यू आर द मोस्ट हैंडीकैप्ड थिंग ऑन अर्थ एंड यू आर द मोस्ट हाइएस्ट लिविंग मास ऑन अर्थ एंड हाउ कम यू आर लिविंग विथ 0.03%? क्योंकि एक पेड़ भी इधर लगाते हैं ना, 0.03 क्या है, अपन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हैप्पीली वो लेगा और ज्यादा ग्रो होगा। फर्टिलाइजर में CO2 का नहीं है, although it is only 0.03, because it will happily grow, it will give more biomass. You see, urban trees will be growing more luxuriantly, but they have other cancerous kind of चीज होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लग्जरी होता है ना जो पत्तों का, कलर ऑफ लीफ, नाइट्रोजन भी ज्यादा मिलता है इनको, तो ये ज्यादा लेते हैं। तो कंपलसरी हर एक क्लासरूम में एक पेड़ होना चाहिए। वो आप बोलो सलाड का भी होने दो, पेड़ मतलब लोगों का और एक फैशनेबल टर्म है, जो 30 साल जिएगा, जो आम का पेड़ है वही पेड़ है। डिड यू सी एनी डे ए मिनिस्टर प्लांटिंग ए ट्री, लाइक क्या बोलते हैं अपना मेहंदी का प्लांट लगाते हुए देखिए क्या, धनिया का प्लांट लगाते हुए देखिए क्या? अरे प्लांट ही होता है। द कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट ट्रीज बोले तो अरे बड़ा पेड़ दो है, कहाँ लगाए बोलते है ना, इधर भी लगाओ बोलते। अरे हर एक डेस्कटॉप में लगा, ये अपना डेस्क का ऊपर लगा सकते, अपना कंप्यूटर का ऊपर भी घर में लगा सकते, कहीं भी लगाओ, टॉयलेट्स में लगा सकते। मनी प्लांट कितना अच्छा प्लांट है, वो पैसा भी आते बोलते, एटलीस्ट उसके लिए तो भी लगाओ। अरे टॉयलेट में भी थोड़ा पानी डाल के लगाओ, एक्चुअली वो बाहर जाता रहता विदाउट एनी डिफिकल्टी। किधर भी लगाओ उसको, ऐसा प्लांट बहुत सारे है, कहीं भी लगाओ, दे लिव हैप्पीली एंड दे ऑलवेज सक दैट। अगर टॉयलेट में क्या करते और केमिकल्स डालते रहते, अरे एक प्लांट लगाओ बस है, वो लेता ही रहता कंटिन्यूअसली, इट विल बी मोर हैप्पी ना। उसको देने का है अपने को, उसका हक बनता है, मुझे CO2 चाहिए, प्लांट का हक बनता है। अपना हक क्या बनता है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अपन क्या देते, कुछ नहीं देते उसको। तो ये एक अपना प्लांटिंग अर्बन एरियाज में प्लांटेशन, इसमें यूजफुल प्लांट्स ज्यादातर, और छोटे बच्चों को भी एक कंपलसरी कोई ना कोई हर महीने में साइकिल्स में, नहीं तो अपन सीड एक करके दे सकते हैं, ईयरली सीड बोल के, तो मंथ में लिख के रखते हैं। वो सोचने की भी जरूरत नहीं है ऐसा बच्चों को, वो पैकेट का को तोड़ो, ऐसा करो, उसमें डाल दो, आता है। जैसा बीन्स है, चिక్కుడు बोलते हैं ना, वो यूजुअली डजंट हैपन वेल नाउ, रेनी सीजन में ठीक होता है, तो उनको सीजन लिख के रखते हैं, ये महीने में ये डाल दो, और डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज वी ऑल्सो हैव लीस्ट नॉलेज। कितने लोग अपने आप एक प्लांट को हाथ से लगाए, बीज को लगाए और ग्रो हुआ, बहुत रेयर है। अपने को जो कोई भी एक प्लांट भी अगर नहीं देख पाता, उसको खाने का हक नहीं है, ठीक है ना? रियली बोलता हूँ। पैडी कहाँ से आता बोले तो राइस मिल से आता, नहीं तो कोई मैकडोनल्ड वाला बेचता, ऐसा बोल के बोलते आजकल बच्चे। अरे देखने तो उसमें एनर्जी है, उसको हर दिन जो बढ़ता रहता ना प्लांट, उसमें एनर्जी है, एंड इट ऑलवेज टेक्स ऑल द बैड थिंग्स। फायर कंपलसरी, वो दिया जलाने का जो कल्चर था वो कंपलसरी जलाओ, जितना भी बैड रहता है वो रूम में, वो बर्निंग बैड फायर का काम है। तो एक दिया भी कॉर्नर में लगाओ, कहीं भी ऐसा कॉमन प्लेसेस में। इसलिए देखो आज भी कोई भी बड़ा सेमिनार होता, सीएम का भी सेमिनार होता, दिया जलाते। इट हैज बिकम ट्रेडिशनल बट इट हैज नॉट बिकम कंपलसरी। लेकिन अपन आजकल वो फैन के वास्ते नहीं हिलने का भी लैंप्स रहते विद ग्लास, ऐसा उसमें एक दिया जला के कंपलसरी उधर रखना। इट एनर्जाइजेस ए प्लेस। अपन जितना देर भी उसको दिया को देखो, कुछ नहीं लगता और एनर्जी बढ़ता, इट एड्स योर एनर्जी। इसलिए कितना भी लोग देखो, हर एक रिलीजन देखो, दुनिया में कोई भी रिमोटेस्ट ट्राइबल आदमी को देखो, द ओनली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स इज वी हैव एम्ब्रेस्ड द फायर। फायर को इतना चाहा हमने। अभी देखो मिसाइल फायर ही होता है ना, बॉम्ब फायर ही होता है ना, कुछ भी सोचो आप, उसको अपन शक्ति के लिए भी लिए, अपना जीने के लिए भी लिए साधन। कोई इंजन देखो, मोटरसाइकिल फायर से ही चलता है ना, तो अपना एनर्जी के लिए लिए और अपना बल दिखाने के लिए भी लिए। कोई जानवर भी अगर फायर को अडॉप्ट करता ना, कोई बंदर क्या होता
अब तक गांव गांव जला रहता, अपना फायर्स बहुत कम होते आजकल, लेकिन वो बंदर पूरा जंगल जला के आता। हनुमान जी बेचारा एक ही ट्राई किया, लेकिन वो हनुमान टाइप हर कोई फायर को अडॉप्ट करता ना, कोई भी जानवर, कोई चिड़िया भी अगर फायर को अडॉप्ट करता ना, फायर उठाने की क्षमता होती और कहीं लेके जाने का उसका डर नहीं है, तो पूरा भी जल जाता दुनिया। सिर्फ आदमी पकड़ा है इसलिए इतना जलाए, है ना, ऑलरेडी जलाए अपन बहुत कुछ किए। तो वो फायर को भी अपनाओ, हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड, इट गिव्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, प्यूरिफाइज है। भूत बोलते हैं, भूत कहाँ जाता, कहीं नहीं जाता। भूत बंगला में फायर लेके जाओ, भूत भाग जाता। भूत का मतलब इट्स अ बैड स्मेल दैट मेक्स यू इमीडिएटली हेडेक आएगा, फिर आप फेंट हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, है ना। इसका मतलब भूत पकड़ लिया बोलते, भूत नहीं पकड़ता। कोई फायर को लेके जाओ, भूत भाग गया, मतलब क्या हुआ, जो फायर है वो बैड स्मेल आइदर इट विल एक्सटिंग्विश, इफ इट टू मच बैड है तो आइदर इट विल जलता और ज्यादा, जल के उसको प्यूरिफाई करता। तो वैल्यूज ऑफ फायर भी आप ये कर सकते। और एक एक्वेरियम, हर एक स्कूल में एक छोटा एक्वेरियम आप प्रेजेंट करने की कोशिश करो। दे लर्न ए लॉट अबाउट ऑल साइंसेस, जितना भी साइंस है ना, बच्चे किताब में पढ़ पढ़ के दिमाग खराब होता, लेकिन वो एक्वेरियम को बताते हुए भी पूरा साइंस बता सकते। एंड ए पर्सन कैन बिकम ए डॉक्टर, अपने जैसे ऑर्डिनरी लोग भी, क्योंकि अगर एक मच्छी जी सकता है एक एक्वेरियम में, यू आर ऑलरेडी ए डॉक्टर, क्योंकि कैन अंडरस्टैंड द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना बोलो उतना साइंस उसमें है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज सर्वेइंग इवन स्ट्रेस, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उससे कैसा खेलना। मच्छी को हाथ में ले सकते क्या, कितने लोग ले सकते, एक्वेरियम में हाथ पकड़ते हैं, मच्छी आके हाथ में बैठना। The day it sits in your hand, comes and sits, so that day you know what is fish. You can understand another living thing. तो ऐसा बच्चों को सिखा सकते हैं ना। घर घर में बुढ़े लोग होते हैं आजकल, वो कहीं नहीं जाते। जेल से भी मोस्ट टॉर्चर सम इज ओल्ड एज। आजकल अपार्टमेंट में एक रूम में डालो, ताला डालो बाहर से, वो डेमनीशिया बोलते हैं ना, उनका दिमाग भी सीधा काम नहीं करता, ये फ्लोर बोले तो दूसरा फ्लोर में जाते, तो उनको एक रूम में ताला डाल दो। ऐसे लोगों के लिए एक्वेरियम रखो, एटलीस्ट उन लोग थोड़ा दिन जी लेते उसको देख के हुए। फिश का उतना टॉर्चर नहीं होता, क्योंकि बड़ा एक्वेरियम में कुछ परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज मेंटेन करो, इट्स नॉट ए टॉर्चर। चिड़िया को केज में बंद करो, इट्स ए टॉर्चर डेफिनेटली। लेकिन ऑर्नामेंटल फिश में गप्पीज ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, उसको अगर एक्वेरियम में डाल के परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज करने से इट्स नॉट ए टॉर्चर, ऐसा है। एंड दे आर हैबिचुएटेड बिकॉज ट्रेडिशनली दीज फिश आर नॉट फ्रॉम वाइल्ड, एक्वेरियम फिश आर बेसिकली कल्टिवेटेड फिश, तो दे आर हैबिचुएटेड। तो उतना अहिंसा बोलते हैं ना, वो भी उतना नहीं है। अगर मर गए तो ठीक है, इसी हर कोई अपन भी मर जाते, इसका मतलब नहीं बच्चों को नहीं पालना, ऐसा नहीं है ना, कोई भी मर जाता है ना। तो उसको इट्स दैट्स व्हाट मेक्स यू मोर सेंसिटिव अबाउट देम, दैट्स व्हाट मेक्स यू मोर अंडरस्टैंडेबल बोलते हैं ना, एक जीव दूसरा जीव का ये। तो एनवायरमेंट में ऑल दिस आर देयर, नॉट ओनली जस्ट फिजिकल बायोलॉजिकल ऐसा बोलते हैं ना इम्पैक्ट्स, लेकिन इमोशनल थिंग्स भी है, रिलेशनशिप्स है। अनलेस यू गेट रिलेटेड, अनलेस यू आर कनेक्टेड, एक्चुअली हाउ यू आर लिविंग बाय माई सेल्फ, कितने लोग बोलते बाय माई सेल्फ बोलते, व्हाट इज इट यू आर डूइंग टू लिव, नथिंग। पता है आप लोगों को कुछ नहीं कर रहे अपने आप जीने के लिए। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग फॉर देयर ओन लाइवलीहुड, क्योंकि आज का खाना बनाया है, ब्रेकफास्ट किसने बनाया हो, किसी ने बनाया, लेकिन वो जो बीज है ना, गेहूं होने दो कुछ भी होने दो, किसने बोया, अबाउट 6-7 months बैक किसी ने बो रहा था कहीं, वो बोने के बाद फिर वो मिल को गया, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आटा बना, फिर रोटी बना, फिर प्लेट में आ जाया सुबह। सो फॉर यूर लिविंग टूडे समथिंग वर्कड इन द पास्ट एंड नथिंग दैट यू कैन डू एक्सेप्ट नहाना, धोना, ब्रश करना, सेलफोन पे बात करना, ये 5-6 चीज के अलावा अपन ज्यादा कुछ नहीं करते। स्पेशली अपने अर्बन वाले तो एटलीस्ट गांव में थोड़ा वो दूध निकालना, थोड़ा घास देना, कुछ ना कुछ अलग होता है ना, दूसरों के लिए भी थोड़ा, अपने लिए यही करते, फिर तनख्वाह कमाते। किसके लिए काम कर रहे हो वो भी पता नहीं बहुत सारे लोगों को। सॉफ्टवेयर में जो है ना, फाइनली दिस विल गो टू समबडी एंड किसके चेहरे पे हैप्पीनेस देखूं वो भी पता नहीं इतना काम किया दिन भर, लेकिन किसका चेहरे पे हैप्पीनेस देखूं,
डू यू नो द क्लाइंट हु विल स्माइल एट यू टेलिंग दैट अरे आपने मेरा भगवान है बोलने के लिए कोई है क्या? इससे अच्छा 2 रुपए उसको डालो, वो ऐसा बोलेगा। जिंदगी भर काम करते किसके लिए कर रहे वो भी पता नहीं, और कौन अपने लिए काम कर रहा है वो भी पता नहीं। वी डोंट गेट रिलेटेड, वी थिंक मैं अपने आप जी रहा हूं, आई एम द सुप्रीम। इसलिए एनवायरमेंट का मतलब इट गोज बियॉन्ड, इट इज नॉट ए सिंपल साइंस। एनवायरमेंट तो अपना रिलेशनशिप है, हाइएस्ट रिलेशनशिप विथ व्हाट वी आर। अल्टीमेटली बियॉन्ड एनवायरमेंट इज ओनली स्पिरिट। अपने आप को खुद को ढूंढना है इस एनवायरमेंट में। हाउ आई एम रिलेटेड, व्हाई इफ आई एम ए लीडर, हाउ एम ए लीडर, नॉट बाय योरसेल्फ, नथिंग। यू आर ए लीडर बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट। समय भगवान होता है। इश्यूज भी आप आउटडेटेड नहीं ले सकते। इश्यूज भी ओनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर का लेने से ही आपका कुछ काम होता है, आउटडेटेड का लेने से कुछ ये नहीं। उसमें एंकरेजमेंट के अलावा और नीचे जैसा प्लास्टिक बैग का ऊपर अपन एक रेवोल्यूशन करेंगे, आ जाओ बोलो, आप अनाउंसमेंट दो कहीं बहुत बड़ा, कितने लोग आते? क्योंकि ऑलरेडी दे नो इट्स ऑलरेडी ओवर। आते क्या? नहीं आते। वो बोलते अरे बहुत बोले, पहले भी बोले, आगे भी बोले, बोलते रहे, स्कूल में भी बोल रहे, सुपरमार्केट वाला भी बोल रहा है आजकल। तो इट बिकम्स ए अंडरलाइन थिंग, ठीक है वी नो दैट बोल के उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब गणेश अगर भी मिट्टी का बना हो गया रेवोल्यूशन। आप अभी सीजन आया फिर दुकान टाइप ही रहता, क्योंकि कोई दुकान वालों को सपोर्ट करना टाइप रहता अपन एजेंट बन के। जैसा सोलर पैनल के लिए वी बिकेम एजेंट फॉर मल्टीनेशनल, बिकॉज सोलर पैनल एक पॉटर से क्या संबंध है? एक ट्रेडिशनल पॉटर होता है ना गांव में, उसको और सोलर पैनल से क्या संबंध है? अगर चाहे तो सोलर पैनल टाइप कोई से बना सकते हैं अपन, लेकिन वैसा कभी एम्पावर किए क्या? पूरा ऑटोमेटिक आना चाहिए, पैनल लेके अपन सिर पे लगा के घूमना है गाँव गाँव गली गली। इट ओनली हेल्प्स दोज पीपल एज एजेंट्स। नीचे से क्या रेवोल्यूशन आ रहा है? बहुत सारे इश्यू है, सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है, बड़ी बात नहीं। जितना भी मैं जो काम किया मैं तो ओपन नॉलेज बोला है, एंड आई कैन सपोर्ट यू विथ ऑल दोस टेक्नोलॉजीज एंड वॉट एवर आई डिड, एंड यू कैन कंटिन्यू सम ऑफ देम, एंड ईच पर्सन कैन डू सो मच थिंग बोल के सोचना, एंड एज ए ग्रुप यू कैन शेक द होल वर्ल्ड। मैं बोल रहा हूं ना, इधर नहीं मून को भी शेक कर सकते, रियली बोल रहा हूं। डोंट वेस्ट योर एनर्जीज। यूथ का एनर्जी फिर नहीं आता, जो बॉइलिंग ब्लेड रहता है ना। मैं भी कभी यूथ था, मैं तो आपके उम्र में क्या क्या करता पता है? सीधा हाईकोर्ट में बैठ के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चला रहा था मेरे, व्हेन आई वाज यंग, लाइक अराउंड 25-26 वो एज में। पूरा इश्यूज कौन सा पटाजेरू पोल्यूशन होने दो, ये कत्लखाना है ना, क्या बोलते हैं, स्लॉटरिंग हाउसेस अगेंस्ट कैटिल डिप्लीशन के लिए। वो अलकाबीर वो डिटेक्टिव टाइप लेते हैं ना, कैमरा से फोटो, वो पूरा लेते हुए उधर अल्लाना उधर भी गया था, अलकाबीर को भी गया था। उनका बाहर निकलता है ना पानी, कैसा निकल रहा, क्या पोल्यूशन हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपन इसमें केस में, सुप्रीम कोर्ट का केस था, यूज्ड ड्रम्स, जो पानी के लिए ड्रम बेचते हैं ना, यू नो हाउ हजार्डस दे आर। वही एक इश्यू है आपको लेने के लिए, घर घर नहीं यूज्ड ड्रम्स, यूज्ड केमिकल ड्रम्स। आप इधर कहीं भी देखो आजकल पानी के लिए बेचते, दे आर वेरी हार्ड, बिकॉज केमिकल बहुत डेंजरस है ना, इसलिए हार्ड बनाते। सिंटेक्स बहुत पतला होता है, तो आदमी लोगों को हार्ड वाला चाहिए। तो जब वो पानी उसमें डाल के पीता है तो उसको कितना पोल्यूशन हो रहा है, किसी ने देखा है? इसी पे भी मैं डिटेक्टिव टाइप फोटो लेके वो केस डाले थे। इट्स वेरी सिंपल, इवन एक प्रेस क्लिपिंग को भी आप पीएल में डाल सकते। पटानचेरू कहने बेच रहे थे, एक्चुअली दे हैव टू पुट इन द ग्राउंड। उसको डिस्पोज करने का 2-3 तरीका होता है, बर्निंग बोले तो, प्रॉब्लम बोले तो दे हैव टू जस्ट क्या समाधि करना है, वो नहीं करके भेज रहे और पैसा कमाने के लिए। पानी का लो एनालिसिस चीपेस्ट है, हर एक से वॉलंटियर बोला आपका घर का पानी हम वही पैसा दे देगा उल्टा, हम जस्ट वांट टू टेस्ट एंड गिव द रिजल्ट्स टू यू। बोला हैदराबाद का मैप काट डालो, बोलकपुर एक आया, कितना बोलकपुर है हैदराबाद में? कोको कोला एक बोलते हैं आप, घर घर में कोको कोला है आज, जो इतना बोले तो पेस्टिसाइड जितना है, कोई भी गांव में पीने लायक नहीं है पानी आज, क्योंकि जितना पेस्टिसाइड अप्लाई किया ना ऑलरेडी अपन। तो वाटर इज बियॉन्ड ड्रिंकेबल, देन व्हाट इज द राइट ऑफ आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 के तहत पूछो क्या है अपना जीने का? एयर पोल्यूशन तो कुछ नहीं कर सकते, दिस द ओनली थिंग विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि
कोई बड़ा नेता भी नहीं बोलता मेरे ड्राइवर का क्या बोलते ब्रीथिंग आई डोंट वांट टू टेक बोल के, क्योंकि अगर ड्राइवर वही कार में है और मिनिस्टर भी उधर ही है, सीएम पीएम भी, ही कैनॉट से दैट आई कैनॉट ही शुड टेक डिफरेंट एयर एंड आई शुड टेक डिफरेंट एयर। ये एक ही इक्विटी है एयर में। कभी आप कहीं क्या बोलते ट्रैफिक पुलिस सिग्नल का नहीं खड़ा है तो कोई आता है देखो कौन सा पैसा मांगने के लिए, एंड दैट आदमी ब्रीथ्स वेरी क्लोजली टू यू। क्योंकि कभी बोला है कि आपसे अरे आपका स्मेल है जाओ बोल के, तो वो एक ही इक्विटी चल रहा है आजकल। ये पूरा छोड़े तो बाकी के हर एक चीज में इक्विटी है। इक्विटी मतलब अमीर गरीब कोई भी होने दो, इक्वली दोस्त सोल बोलते हैं ना, कॉमन सोल एक ब्रीथिंग में ही है आजकल। बाकी का पूरा डिवाइड हो गया विथ क्लास एरिया। अब गेटेड कम्युनिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप सोचते हैं हमारा भारत एक है, क्या भारत एक है? एक गेटेड कम्युनिटी द कंट्री, यू नो, दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव देयर ओन रूल्स। कुत्ता पालना नहीं, चिल्लर पार्टी देख रहा था कल बच्चों के साथ। मैं वेरी रेयरली देखता हूँ लोग हंस हंस के देख रहे तो क्या हो बोले तो बच्चों का एक अच्छा स्टोरी है वो कालने में कुत्ता को बेच दो बोलते, बोले तो नहीं रखना बोलते, तो बच्चे क्या क्या किए बोले तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आप भी देखो बच्चों का एक फिल्म है चिल्लर पार्टी बोल के, बहुत अच्छा है। तो अभी क्या है बोले तो कोई भी एरियाज में जो गेटेड कम्युनिटी है उसमें स्विमिंग पूल है। मैं कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ, बहुत सारे जगह ऐसा है, इसमें स्विमिंग पूल है। नेक्स्ट टू दैट गेटेड कम्युनिटी वो टाइल्ड वाला, पुराना टाइल्ड वाला होता है ना गांव, गाय भैंस पूरा उधर है। सी द डे विल कम दे विल ब्रेक इट। हाँ, रास्ता रोकने का अधिकार तो किसी को नहीं है। फिर रास्ता कैसे रोक दिए, गेट ही कैसा बांध दिए और बोलते हैं कि अंदर आने के लिए पासपोर्ट वीजा चाहिए। पासपोर्ट वीजा बोलते ईच पर्सन इज एन आइडेंटिटी, फेशियल आइडेंटिटी, नहीं तो थंब का आइडेंटिटी, नहीं तो कार्ड का आइडेंटिटी है। कोई भी रिलेटिव कोई आए तो भी उसका कुछ ये नहीं है। गेटेड कम्युनिटीज आर द थिंग विच ऑलरेडी क्रिएटेड ए वर्ल्ड विद इन अनदर। भारत में भारत और बन गए, दे डोंट बिलोंग, बिकॉज उनका टेस्ट है, उनका सुपरमार्केट है, उनका कल्चर है, उनका सेलिब्रेशन है। इधर न्यू ईयर का पार्टी कैसा चलता, वो गांव वाले का वो बोनालू कैसा चलता, दोनों साइड टू साइड होते। एक कॉन्ट्रास्ट में ही हो जाता अभी गड़बड़, एंड दैट इज नॉट राइट। इंडिया के लिए डिविजन्स जो होते हैं ना ऐसा, ठीक है आप खरीद लिए अलग बात है ठीक है, लेकिन अलग बात है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं, ये डिफेंस का है क्या? आदमी अंदर भी नहीं आना बोले तो कैसा होगा? सिक्योरिटीज, हर एक सिक्योरिटी अपना प्राइवेट सिक्योरिटी। आजकल ट्रैफिक पुलिस वाला मेट्रो वाला पता नहीं चल रहा है या ये न पता नहीं चल रहा, वो तीन जाते हैं ना, वो मेट्रो वाले को देख के भी वही ट्रैफिक पुलिस वाला सोच के भाग जा रहा है सेम ड्रेस दी है उसको भी। आजकल वो प्राइवेट वाले बहुत स्मार्ट दिखाई देते हैं, उनका पूरा अमेरिकन टाइप दिखाई देते हैं पुलिस, है ना। तो बहुत सारे डिविजन्स हो रहे हैं सोसाइटी में, ये पूरा एनवायरनमेंट में ही आता है। नेवर थिंक एनवायरनमेंट सोशल अनरिलेटेड। एक्चुअली एनवायरनमेंट इज लाइक जेंडर, इट्स नॉट ए सेपरेट सब्जेक्ट, इट इंटीग्रेट्स विथ एवरीथिंग। इसके लिए मैं बोलता हूँ द स्ट्रक्चर कुछ नहीं, आप कैलेंडर बना लो, और जैसा अभी सीजन के गणेश का आ रहा है कहते तो भी अब बारिश गिरते फिर 2 मंथ में ही है ना। इवन बिफोर क्या बोलते ये गणेश है, मिट्टी का गणेश है, आप बोलो मैं प्योर मिनरल वाटर देता हूं उसमें आप डुबाओ बोल के, अच्छा है। आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज तो क्या सॉल्यूशन बोले तो घर घर में पानी, अच्छा पानी ले लो, गवर्नमेंट का पानी टेस्टेड वाला पेस्टिसाइड में फिर वो भी मर जाएगा बेचारा, वो पानी में उधर ही डुबाओ, ठीक है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी को पेड़ को डालो, काम खत्म बोल दो। तो ऐसा कुछ छोटा बताओ सोल्यूशन, देन रेवोल्यूशन विल हैपन। एटलीस्ट पीपल शुड बी अशेम्ड। कोई नेता को उतारेंगे क्या, कोई गली का नेता को लेके आओ अपना सैंपल के लिए, उसको उतारो बोलो पानी में, उतरो बोलो, तो पूरा लाइव रिकॉर्ड करो, अच्छा रहेगा। वो क्या बोलता नहीं, वहां तक ले गया ना, आज एक मीटिंग है, आप भाषण देना बोलो, ठीक है बोलो, काम बोले तो पानी में खड़ा होके बोलो नहीं, बहुत मजा आएगा। आजकल कॉमेडी भी चाहिए, यू डोंट थिंक सीरियस इश्यूज आर सीरियस, हंसते हंसते भी बहुत कुछ कर सकते। नेवर थिंक सीरियस इश्यूज आर, कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल गए तो सीरियसनेस है, कोर्ट कचहरी में सीरियसनेस है। कभी जोक डालता है क्या जज? एक भी नहीं डालता, पूरा दिन ये बात करता वो बात करते, फिर बाहर निकलते।
प्लेफुली करो रेवोल्यूशन, अच्छा है। जब यूथ के लिए मजा आएगा, यूथ के लिए एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, किक चाहिए। किक में सीरियसनेस नहीं रहना उनको ज्यादातर। अरे डांस प्रोग्राम लगाओ, पानी में गिटार बजाओ, कुछ भी करो, क्या है, फ्री है ना। बाहर तो पैसा लेते हैं, पानी में तो फ्री है। और पीपुल्स प्लाजा बुक करने के लिए बहुत खर्चा होता है अपने को। फ्लमेरियस का भी ले, आप बोलो इसको यात्रा बोलो, कुछ यात्रा बोलो, दर्शन बोलो, कुछ बोलो, पानी दर्शन, ऐसा कुछ नाम दे उसको। वो दे के एंड इवेंट बोलो, एवरी वीक या एवरी मंथ एक इवेंट लगा दो। और अच्छा प्योर जो टैंक है उधर भी जाना, उधर का मच्छी कैसा है, बायोडाइवर्सिटी उसको भी एंजॉय करो। वैसा अमीनपुर टैंक था, आपको पता है फ्लेमिंगोस इधर आते थे अमीनपुर टैंक में, अभी नहीं आते होंगे। पठान चेरू का ने अमीनपुर चेरू बोलते हैं, फ्लेमिंगोस आते थे। कैन इमेजिन फ्लेमिंगो, जहाँ राना ऑफ कच्छ में थे, नहीं तो इधर पुलिकाट में कभी आते थे शायद, वो फ्लेमिंगोस इधर आते थे। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यूनिवर्सिटी का एक लेक है, एक कॉर्नर पे रामंतापुर के उस तरफ पीछे की ओर। अभी भी माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं उधर, क्योंकि इट इज अनडिस्टर्ब्ड। क्या वो कंपाउंड वॉल बना दिया ना यूनिवर्सिटी का, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू सी एंड एंजॉय। लोकल बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्लेसेस विद इन हैदराबाद दैट वाइल्डनेस भी है, अभी आपको पता नहीं, अपन भूल गए इधर होता क्या ऐसा बोल के सोचते। थोड़ा बच्चों को उसमें आप लीडर बन के फिर इन्वॉल्व करो उनको, हाउ टू एंगेज देम कंटिन्यूअसली। क्लासरूम में लेक्चर मत दो। मैं भी अभी रिसेंटली MBA इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में पढ़ाया था, MBA कोर्स। बच्चों को क्लासरूम नहीं AC का था, कितना फीस दिया, बोला 5 लाख, तो इसलिए AC होना ही था। मैं बोला मेरा तो घुटन होता है, थोड़े देर के लिए बिठाते, बाद में क्या, मेरा पूरा AC में है तो प्रॉब्लम नहीं है अपने को, थोड़ा देर अंदर थोड़ा देर बाहर, तो वो भी बोलते हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो फिर जंगल में जाके क्लास होता था। वो अरे वो सांबा टाइप बैठते थे पूरे पत्थरों पे, एक वो उधर एक इधर इधर, पूरा मैं नीचे बैठता, बातें हो जाते। मैं पढ़ाई क्या, पूरा पढ़ाया सर बोलते मेरे बारे में सिलेबस भी नहीं पूछते, क्योंकि इंस्पायरिंग ऑन द सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। ये अर्दम याद रख लो। कोई भी बच्चों को कोई सब्जेक्ट को टीचिंग मत कर, अपना टाइम कम है, टीचर का टीचिंग है। अपन क्या है, बीच बीच में आने वाला है ना, वी कैन ओनली इंस्पायर पीपुल, वी शुड नॉट टीच सब्जेक्ट। उसके लिए टेक्नोलॉजी अलग अलग लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इज नॉट सेम क्लासरूम टीचिंग टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, क्योंकि उनका टीचिंग जॉब है। तो यूजुअली टीचिंग से ज्यादा अपने को सेंसिटाइज करना इंपॉर्टेंट। टीचिंग में लेसन मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुआ ना। ही गॉट ए गुड लेसन का मतलब नेगेटिव हुआ, ही गॉट ए गुड लेसन भी नेगेटिव है, टीचिंग में लेसन ऑल्सो नेगेटिव है। तो ये टेक्नोलॉजीज क्यों अपने पास काम आते, नहीं आते ना, तो उसको छोड़ दो। सेंसिटाइज करने के लिए 5 मिनट का क्लिपिंग एनफ है, मैं बोल रहा हूँ आजकल। एक रेवोल्यूशन करने के लिए, आप देखो बहुत सारे रेवोल्यूशन दुनिया में हुए हैं, थोड़े कंट्रीज में भी जो ऑपरेशन होता रहा था बच्चों के बारे में, ऐसा जो कुछ भी, सिर्फ एक छोटा क्लिपिंग रेवोल्यूशन किया। पीपल आर सेंसिटिव टू मीडिया, पढ़ते नहीं, सुनना वो अलग बात है, वो पूरा छोटा छोटा चीज है। एंड एवरीबडी इज नॉट ए गुड ओरेटर, इसलिए भी प्रॉब्लम आता है। अपन सोचते हम 100 लोगों को बना दिए, 100 लोग जाके अभी 1000 स्कूलों में बोलेंगे, लेकिन इम्पैक्ट्स अलग अलग होते, वी डोंट गेट द सेम रिजल्ट्स। लेकिन विद द टूल्स देन इफ यू गो, फिर भी चलता है। तो अभी ये पंचभूत को ले लो, जो कुछ भी है अपना, हैबिटेट्स को भी एक ले लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है, हैबिटेट, लिविंग हैबिटेट्स। इतना आसान बात नहीं है वो, क्योंकि जितना श्रिंक हो रहे ना अपन, स्पेशली इन बच्चों का जीवन बहुत मुश्किल में होता। द स्पेस दैट वी यूज्ड टू रन अराउंड, द स्पेस वी हैड फॉर आवर ओन, गोटी खेलना, वो खेलना, कहाँ है वो पूरा बच्चों को। तो पूरा टॉयलेट भी अंदर ही हो गया, अब कहाँ जाते उन लोग, कहीं नहीं जाते। तो नहीं, इतना ये हो गया ना, मोस्ट श्रिंक्ड बोलते हैं। क्लासरूम भी बहुत बेकार है स्कूलों का,
जो टॉप रैंक आते ना वो स्कूल देखो कैसा रहता, पोल्ट्री फार्म और वो दोनों एक ही दिखते है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज इज नॉट फिट फॉर पोल्ट्री फिशिंग्स। मैं रिसेंटली इंक्वायरी किया, अभी इतना बेकार पड़े हैदराबाद के सराउंडिंग्स में, पोल्ट्री के लिए काम आता है बोले तो उसके लिए भी काम नहीं आते, तो मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट उसके लिए तो भी काम आना चाहिए ना। आदमी उतना बेकार पड़ रहा है क्या वो बिल्डिंग्स में? अगर वन बर्ड कैन नॉट स्टे देयर, व्हाई वी आर स्टेइंग देयर, आई डोंट नो। जिंदगी में एक्वेरियम एक चैलेंज था एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। मैं एक फर्स्ट बॉल लाया था, 3 फिश लाया था, उसमें डाला था। इट्स फैशन है ना, कोई भी लाएगा रखेगा, और पानी साफ रहना, क्योंकि अपने को दिखने के लिए लाए ना, उसका जीने के लिए नहीं। तो अच्छा उसमें पानी निकाल के तेज पानी डाल के दिख रहा है फिश दिख रहा है बोल के डाला, मर गए 2 दिन में मर गए। मैं कितना पापी हूँ, दुनिया में एनवायरमेंट बोलता हूँ और इधर कितना ब्यूटीफुल फिश को मार डाला। खाने का फिश भी नहीं है, पर खाने का है तो ब्यूटी क्या है, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाते। तो ऐसा बोल के मैं बहुत फील होके उसको पेंसिल पेन डाल के रख दिया उधर, वही काम करते हैं ना नेक्स्ट बॉल को। तो फिर 1 साल के बाद मुझे लगा था कि क्या मैं पर्यावरण बोल के दुनिया भर बोलता हूँ घूमता हूँ, लेकिन अगर एक फिश को अगर आई कुड नॉट मेक इट लीव, इट मीन्स आई नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज एनवायरमेंट बोल के चैलेंज लेके फिर वही बॉल को लेके फिर फिश फ्रेशली खरीदा। तब जाके इंटरनेट पे बैठा, फिर टैंक्स लेक्स में उतरा मैं खुद, टू अंडरस्टैंड दैट इकोसिस्टम, पानी का एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। आप बिलीव नहीं करते, मेरा उम्र भी अभी कितना, जब ओनली 6-7 ईयर्स बैक ये जो हुआ था, मैक्सिमम 8 ईयर्स बैक टैंक्स में उतरा। तो जहाँ लीच थे, हैदराबाद के सराउंडिंग में टैंक्स है ना, उधर से वीड्स को उठा के देखना, फिर हिमायत सागर का पानी निकलता है, उधर जाके भी फिश भी पकड़ा मैं नेट डाल के, देखना चाहता क्या है, कैसा जीते, क्या होता है। तो वैसा वैसा मैं 5 साल बिताए इसका ऊपर। इट्स नॉट ए जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम है ना, टाइम में ही नियरली मोर देन 5 years आई स्पेंट एंड आई ब्रॉट सो मेनी फिश एंड दे वर लिविंग हैप्पीली। मतलब अपन, इट इज नॉट योर एंजॉयमेंट, लेट देम एंजॉय फर्स्ट, देन यू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। नो, मुझे पूरा दिखना मतलब क्या हुआ? वो नंगा ही है, लेकिन कितना नंगा दिखना है? नहीं, पानी फ्रेश रहना मतलब ही उसका डेथ है। मतलब उसके लिए थोड़ा आल्गे चाहिए, थोड़ा माइक्रोब चाहिए, थोड़ा पत्थर चाहिए। वो पत्थर भी कलर पत्थर डालते हैं स्पेशली, वो कुछ काम के नहीं है। लोकल पत्थर डालो, तो कुछ लोकल जो कुछ भी है डालते जाओ। देन मैं ब्रीडिंग भी सीखा, सब कुछ सीखा। अभी भी आउटलेट गया एक्वेरिस्ट बोल के, बच्चा जो मेरे साथ काम करता था बिकॉज ऑफ माई अदर एंगेजमेंट्स, वो बच्चा अभी संभाल रहा है। लेकिन व्हाट हैपेंड विद दिस 5 years भी मुझे सस्टेन करने की बात इसलिए आया कि थ्रू दिस मीडिया आई कुड टीच मेनी पीपल, स्पेशली पेरेंट्स। बच्चे आते हैं ना, कोई भी दुकान में हरी भरी आके जाते, ये साबुन दे बोल के भाग जाते, लेकिन एक्वेरियम में कोई आदमी ऐसा आके ऐसा नहीं जाता। कोई भी आदमी आता है तो स्पेंड्स टाइम एंड ही कम्स विद सम लीजर ओनली, कोई भी हरी भरी में नहीं आता कभी भी। तो वी गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम, टेल देम अबाउट एनवायरमेंट। मेरा फिश मर गया बोलता, द वे यू लिस्ट, इवन डॉक्टर भी उतना लिस्ट नहीं करता द रीजन, एटलीस्ट 30-40 रीजन। फीवर आया बोलता, डॉक्टर क्या बोलता? कुछ नहीं बोलता, मेडिसिन पहले लिखता, जाओ बोलता। कभी पूछा क्या डॉक्टर क्यों मर गया बोल के? लेकिन अपना वो एनालिसिस होता है, उसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल एनवायरमेंट। इसलिए फिश का मैं बहुत वैल्यू रखता हूँ, वन ऑफ द हाईएस्ट। फिश मतलब लाइक टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर टाइप। टाइगर है तो पूरा है बोलते हैं ना, एक फिश के वास्ते यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स अराउंड दैट, ऐसा। इसलिए बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए पहले मेंटल बनना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट में मेंटल बोल के रहता है ना, तो बाद में वी हैव टू डू प्रैक्टिकली सर्टन थिंग्स। विदाउट डूइंग थिंग्स वो बनना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल मतलब उतरना है तो उतरो, कचरा में उतरना है तो उतरो। अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी उतरे नहीं। डाइविंग बोलते हैं, उसमें डाइव करो, करके देखो क्या कचरा होता है। कुछ नहीं होता उसमें उतरने के बाद। जो बोलते हैं ना गटर का कीड़ा गटर को पसंद करता है, ऐसा ही है।
We don't know what we are enjoying, what we are not enjoying. We are enjoying because we are habituated to. वो मूसी के आजू बाजू रहने वालों को पूछा रहे क्या गंदा स्मेल आता क्यों जी रहे, कहाँ स्मेल साहब, अगरबत्ती तो अभी जला अच्छा ही है बोलेगा वो क्योंकि they get habituated, it's not out, we think it's something else. एनवायरमेंट में इसलिए प्रॉब्लम आ रहा अपने को, रोड पे कचरा है तो वी थिंक इट्स नेचुरल, विदाउट कचरा इट्स नॉट ए सिटी, है ना. तो वी थिंक एवरीथिंग पार्ट ऑफ द पैकेज दैट वी गेट. जैसा अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पैकेज बोल के होता है ना, ऐसा ही है. पनिशमेंट भी एक पैकेज है, ट्रैफिक वाला एक पैकेज है, पुलिस वाला एक पैकेज है, वन वे एक पैकेज है. मैं 2 दिन वायलेट करके आया, क्या करूं दुनिया में जीने के लिए. अरे वन वे वाला क्या करो समझ में नहीं आ रहा. फर्स्ट रूफ गार्डन्स मेरा प्रायोरिटी है. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. इवन यू नीड नॉट गो फॉर वॉकिंग स्पेशली इन द विंटर्स आउटसाइड, डोंट गो बिकॉज द पोल्यूशन दैट यू गेट इफेक्टेड इज हाईएस्ट. अस्थमा लोग भी विंटर में कितना सफर होते हैं क्योंकि जमीन पे ही पोल्यूशन ज्यादा होता है. ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का एडवांटेज है कि वी गेट मोर फ्रेश एयर एट द हायर लेवल्स. सो हैव ए गार्डन देयर, लैबिरिंथ गार्डन बोलते हैं. यू कैन मेक लाइक दिस, means path. So you make the 10 acre garden more than enough है. So you create labyrinth gardens, you have your own eatable things, so brinjal, टमाटर वो भी काट लेंगे, greens डालो वो भी थोड़ा काट लेंगे, नीचे fresh अपना सलाद बनेगा, खाना बनेगा. You have your own walk. Gardening में actually we get connected so much with soil, plants, everything. अर्बन गार्डन से रेवोल्यूशन होना ही है, यू कैन स्टॉप इट बिकॉज अभी जो खर्चा होगा ना फूड न्यूट्रिशन है पूरा वैल्यूज पे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा पीने का पहले पानी नहीं उसको कौन देगा. मैं ये सोच रहा था फ्लश रहता ना, सिंपल टेक्नोलॉजी है. फ्लश के पानी के लिए सी वॉट एवर यू डिड इन योर टॉयलेट इज ऑलरेडी बैड. फ्लश के लिए अच्छा पानी देने की क्या जरूरत है. तो एक काम करो, ऊपर बर्तन धोने का कपड़ा धोने का पानी ऊपर वाले का है ना अपार्टमेंट में, उनका पानी अपना फ्लश को लिंक करो. एटलीस्ट वो आपको हेल्प करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला नीचे को. नहाने वाला भी ठीक है ना, मुंह धोने वाला भी ठीक है ना. फ्लश के लिए अच्छा पानी देने की क्या जरूरत. साबुन का पानी तो ठीक ही है. मैं सुबह ही सोच रहा था अरे मैं क्यों बार बार फ्लश अच्छा पानी दूं, अच्छा पानी दो. पहले वॉट एवर आई डिड इज बैड, उसमें और क्या स्वच्छता, कितना स्वच्छता है, हाथ थोड़े उसमें लगा के ऐसे ऐसा करते जैसा टीवी में दिखाते हैं ऐसा छोटा छोटा टेक्नोलॉजी कैन इजीली डू. प्लम्बर कर सकता, वो बड़ी बात नहीं है. ग्रे वाटर बोलते देन यू पंप दिस वाटर फॉर योर प्लांट्स. यूरिनल्स पूरा ऊपर ही लगाओ, अच्छा है, वो पेड़ को डायरेक्ट जाता विदाउट स्मेल. अपना बायोचार है, दैट आई डिड काइंड ऑफ रिसर्च, इट इज पायनियरिंग वर्क है इंडिया में. वो बायोचार डालो, स्मेल ही नहीं आता. बायोचार यूरिनल्स बनाओ, ओपन टॉयलेट से अच्छा है ना, दुनिया को देखते हुए टॉयलेट कर सकते हैं ऊपर से. आई मीन ग्लासेस थोड़ा डार्क होंगे, यू कैन सी द होल वर्ल्ड व्हाइल डूइंग इट. इसलिए तो बाहर लोग करते हैं ना, चारमीनार को बिना मिस किए वो काम करना बोल के, असेंबली को बिना मिस किए काम करना बोल के. आदमी के पास टाइम नहीं है ना, यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. और सेल फोन भी होता है हाथ में मैं इतना क्रिटिकली बोल रहा हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन इतने सालों से कर रहा हूँ. इट्स ए फ्रस्ट्रेशन दैट इज ब्रिंगिंग मी दिस क्रिटिसिज्म. क्योंकि कोई, मैं CNN वाले आए थे, मैं बोला मैडम आप ये ले लो, बोला मेरा कुछ शूटिंग करने के लिए आए थे. नहीं, इट्स ए वेरी गुड इश्यू. माई सन इज ऑल्सो थिंकिंग, इज डूइंग ए प्रोजेक्ट ऑन दैट, बट वी कांट टेक इट. जितना भी टीवी चैनल वाले, आज भी एक टीवी चैनल से मिल रहा हूँ मैं, पहला इश्यू में ये टॉयलेट का बोला. वो बोलते किसी के बारे में बातचीत करने मेरे लिए पूरा दिन लगा देंगे लेकिन ये काम नहीं देंगे बोलते. रेवोल्यूशन में द पीपल यू आर नॉट टच्ड यू टेक, देन ओनली यू विल गेट मोर एनर्जी बिकॉज यू कैन क्लेम इट. वी स्टार्टेड द मूवमेंट. जितना भी आप करते ना वो पूरा उसमें रूटीन चीज है. रूटीन चीज में मूवमेंट्स नहीं आते. एटलीस्ट 3 चीज अच्छा लगाओ, एक चीज तो भी रेवोल्यूशनरी होने दो. मतलब इट्स लाइक स्पेशल, जैसा स्वीट होता है ना फाइनली अपना थाली में टाइप कुछ स्पेशल ऐसा.
तो दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड किक मारने के लिए, नहीं तो बिना किक कोई ज्यादा दिन काम नहीं करता. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सस्टेनिंग द इंटरेस्ट इज मोर डिफिकल्ट विदाउट किक्स. किक का मतलब अंदर से. अभी मैं भी क्या काम करते आगे बोलते पता नहीं मुझे. जो चैलेंजिंग है वही लेता हूँ, और क्या करने का. अभी अपना इनका रूरल का कनेक्टिविटी का भी एक प्रोग्राम कंटिन्यूस करो. जैसा अपना आलमासपल्ली में वो जरा नाइट का स्टे था ना, आई थिंक हाँ सायरेड्डीगुडम का नाइट स्टे था अपना. जियो स्पिरिट क्या बोलते नाइट का हुआ था. वैसा कैंप्स कंडक्ट करने से फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन में आगे आदमी बढ़ता, लेकिन हम्बलनेस नहीं आता. आई एम सो एंड सो बोलते. जब आई एम सो एंड सो जाता, जैसा रोड पे अपन चलते रहे तो व्हाट अदर्स थिंग, जैसा शोभित मेरे बारे में परिचय दे रहा था, मुझे पता है जो कुछ भी दे रहा तो इट इज नॉट 100% करेक्ट. ठीक है, लेकिन दैट इज व्हाट आई एम. ये आपको अमरदम लगना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम. What I tell is not what I am, because what he retained, what he is telling finally, that is what I am. तो जैसा आप भी सोचते होंगे ना, जैसा फर्स्ट मिले तो ये कौन आदमी है बोल के कुछ सोचते, तो that is what I am. ये बेकार आदमी है, ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, पागल आदमी है, जो कुछ भी सोचना हो that is what I am. तो ये नहीं आता यूजुअली. वी ट्राई टू मेकअप आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो. जैसा ये डालते हैं ना गले में, क्या सॉफ्टवेयर में ज्यादातर डालते हैं. मैं बचपन में देता था, जो मूर्छा रोगम बोलते, वो गिर जाए तो उसका बिल्ला रहता, वो देख के कितना पानी डाला बोल के उसमें रहता. रियली बोल रहे, उसका इलाज नहीं था वो जमाने में ऐसा. अभी आप लोगों को देखे तो हमारे बच्चे भी डालते हैं, उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि घूम गए तो घर भेजने के लिए है ना. अभी आपके लिए बैग में तो डाल सकते हैं नहीं, गले में डाल के घूमना. लड़की को देखने गए तो भी वो गले में रहना, नहीं तो लड़की कौन देगा. शादी कंपनी से करा रहे या बच्चे से करा रहे. We can talk all day and we'll keep enjoying. So, but we'll prepare something and definitely you should visit his place. Lot of interesting experiments. The fish he talked about. In his car he has a garden. Everything. Wherever you see, lot of experiments he keeps trying and very interesting things. And every time I meet him, I'm fascinated. So, I'm very happy to see this youth group growing very fast and doing so many things. And my only intention and support is for your the biggest revolution that you would do globally. Never think it is Hyderabad Youth for Seva, but you think whatever is happening here is global. Because we are not connected just to a region or a place or anything. Especially issues like environment, education, all these, they go globally ultimately. बच्चा को पढ़ाए तो इसका मतलब वो नॉलेज सिर्फ अपना गली के लिए यूज करता कि ऐसा कुछ नहीं. ऑल दिस विल हैव इम्पैक्ट ग्लोबली. एक मैं डेफिनेटली आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था, एक यूथ फॉर पॉलिटिकल लीडर्स बोल के एक स्पेशल मॉड्यूल बनाओ, जिसमें पहले जो कोई भी पॉलिटिशियन बनना चाहता है उसको पूरा उतारेंगे मतलब इश्यूज का पूरा ये करेंगे. देन यू गिव ए सर्टिफिकेट, इट डजंट मैटर, लेकिन डेफिनेटली यू स्टार्ट. दैट इज नीड ऑफ द डे. क्योंकि पॉलिटिशियंस हर कोई सोच रहा है जो काम किए ऐसे ही करते पॉलिटिशियंस. अगर मैं जेल जाना है तो सब कुछ जाना चाहिए. पूरा पॉलिटिशियन के तो कौन है चलाने वाले, इसलिए बनाना चाहिए ना अभी, क्योंकि अभी पूरे जाने वाले हैं एक को एक पकड़ के. अभी इश्यू इज नॉट सॉल्विंग द थिंग. इश्यू इज ओनली फॉर हर कोई चलेंगे जेल को बोल के. तो अभी तो लीडर्स चाहिए अपने को इमीडिएटली. तो उनके लिए बनाने के लिए अपने को एक मूवमेंट चाहिए. तो इसके लिए आप थोड़ा कोशिश, क्योंकि नोबडी एल्स इज डूइंग, मुझे तो पता है, इसका ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा.